ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର 14 ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅସୁର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହରିଭଜନ କରିବା ହିଁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଗବତ ଭଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ସର୍ବଲବ୍ଧା ଆପଣେନ ଚ ସଙ୍ଗେନ ସାଧୁ ଭକ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ହବ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତାହା ସବୁ ଦେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଭଗବତ ଆମର ମତି କ'ଣ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାକାର ସବୁ ଆମର ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସବୁ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ବା ଗୁରୁଟ ଆସୋସିଏସନ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କ'ଣ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସହଜ କଥା ଯେ ତୁମେ ଏ ଅସୁର ବାଳକ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କର ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କର। এইଭଳି ଆରାଧନା କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ ରିପୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ଏଇ ଷଡ଼ ରିପୁ ଜୟ ହବ, ସେଟା ଭଗବତ ଚରଣରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ରତି ଜାତ ହବ ବା ପ୍ରେମ ଜାତ ହବ। ସେଇ ପ୍ରେମମୟ ସେବା ସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ନା ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ସେ ସବୁ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଷ୍ଟସାତଟି ବିକାର ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ଏଭଳି କ'ଣ ନା ସେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ, କେତେବେଳେ ହସିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ କଲା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ବିଷୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ତାର ସଂକଳ୍ପ କଲା ପାଇଁ ତା ହୃଦୟରେ ତାର ଶରୀର ବିକାର ହେବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ 38 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କୋ ଅତି ପ୍ରୟାସ ଅସୁର ବାଳକ ହାରେ। ଅସୁର ବାଳକ ମାନେ তুমি এটা କାହିଁ ଭାବୁଛ ଯେ ଅତି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ ହରିଭକ୍ତି କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏଇ ଯେ ୱାର୍ଡଟା କୋ ଅତି ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି 19 ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା କହିଛି କୋ ଅତି ପ୍ରୟାସ। କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରୟାସ ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏତେ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର ନାହିଁ। କୋ ଅତି ପ୍ରୟାସ ଅସୁର ବାଳକ ହାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ তুমি ଭାବୁଛ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଅତି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଉପାସନେନ ସ୍ୱ ହୃଦୟ ଛିଦ୍ରବତ୍ ସତ, କାରଣ ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ହରିଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏତେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଏତେ ମାନେ ଅଧିକା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମର ସଖା ରୂପରେ ଆମ ହୃଦୟ ସଦାସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାତ୍ମନ ସୁଖ ଅଶେଷ ଦେହି ନାମ ସାମାନ୍ୟତଃ କିଂ ବିଷୟ ଉପାଦ୍ୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଏତେ ସହଜ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ସଂସାରକୁ ବା ଆମର ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଯଦି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତଥାପି ବି ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହିପରି ପରମ କାରୁଣିକ ଏବଂ ପରମ କୃପା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବେ।
किए भाई भली माने कृतज्ञ अच्छे से भगवान भूलीଯିव तेणु से कहते जे स्व आत्मन सुखम अशेष देहिनाम समागतम कि विषय उपवाद तार कहते प्रकृत में भगवान को संतोष करने सहज किंतु किंतु आम जदि लोक मैंने किभली भाव में कौन कर लोक मैंने किभली भक्तिपरायण होना कारण इंद्रिय सुख भोग करने व्यक्ति को बहुत कष्ट करने पड़े प्रभुपाद कहे जे नरक को जावाई आमको कष्ट करने पड़ो कि भगवत धाम जो तो कष्ट करा पड़ोनी कारण नरक जावाक हेले आमको कौन पाप कर्म करने पड़ो आमको अर्थ रोजगार करा पड़ो अर्थ रोजगार कर अर्थ को कौन मद मांस खाया पड़ो विभिन्न प्रकार पाप कौन जो रही जुआ खेलिया पड़े जो 4टा नियम रही आमर से 4टा नियम भांगा पड़ो तेणु ये पाप कर्म कले आम नरक को जावा किंतु भगवान भक्ति करते कष्ट ना आमर जुहारे यदि भगवान नाम कर कौन खर्च हबार अच्छे जुहारे भगवान नाम करवा हाथ में करताल दे भगवान नाम करवा जे कौन खर्च अच्छे कौन कष्ट अच्छे कान द्वारा भगवान गुणकर्ता श्रवण करवा कौन कष्ट अच्छी कि नरक को जावाई आमको कष्ट करा पड़ो आमको अर्थ रोजगार करा पड़ो अर्थ को विभिन्न उपाय खर्च करा पड़ो पाप कर्म कले ही आम नरक को जावा कष्ट करा पड़ो से कहते ना कौन विषय उपपादने सामान्यतम किंग विषय उपपादने माने इंद्रिय सुख भोग लगी आमको कृत्रिम उपाय विभिन्न प्रकार आयोजन करा पड़ो बहुपात जो पर्पट रे सुंदर भाव शिक्षा दे जे नरक जीवार लगी अनेक प्रकार चेष्टा करिया कहीं जदि अवैध स्त्री संग आमिष आहार द्रुत क्रीड़ा एवं मद्यपान करिवार माध्यमे नरक जीवाक चाहती ताहले तांको केते प्रकार आयोजन करबो कि हेबो नरक जीवा गले हमको बहुत प्रकार व्यवस्था करबे पड़ो भगवान भगवत धाम जीवा गले कोन व्यवस्था नहीं केवल आमर इंद्र मान द्वारा भगवान नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अत्यंत सहज कि प्रहलाद से आश्चर्य होती प्रकृति एते भगवान को आराधना करते सहज ही कि लोक मानकर यही प्रकार आराधना प्रदान मत होना प्रभुद को देख अवैध जनसंग परिवार उद्देश्य बेश्यालय जीवाक पड़ो एवं से बेश्यालय जीवाक हेले अर्थर आयोजन करा पड़ो आमिष आहार लगी माने कंसेई खानार बंदोबस्त करा पड़ो जुआ खेलिबार लगी जुआ खेल होटेल व्यवस्था करा पड़ो मद्यपान मद्यपान करने कौन ना मदर कारखाना खोलिया पड़ो स्पष्ट भाव बुझा जाए जे कहीं जदि नरक जीवाक चाहती ताहले तांको केते प्रकार चेष्टा करिया हुए किंतु कहीं जदि भगवत धाम जीवाई चाहती तेबे तांको कौन प्रकार कठिन प्रयास करिवार आवश्यकता नहीं भगवत धाम को फेरी जीवार लगी से एकाकी जेको स्थान थाउ ना कहीं कौन अवस्था बसवास कर कहीं केवल मात्र से आसन उपविष्ट होई परमात्मा ध्यान करी भगवान महिमा कीर्तन करी एवं महिमा कीर्तन एवं श्रवण करी यहीपरि भाव में समय माने समान भाव भाव कौन असुविधा नहीं भगवान आम जो अच्छे जो कौन स्थान अच्छे जो जगह बसीचे से जगह रहीकि भी आम भगवान नाम कर भगवान ध्यान कर किंतु आम नरक जीवा चाहिए आमको बहुत कष्ट करा पड़े बहुत प्रयास करा पड़े तथापि लोक मैंने बहुत प्रयास कर नरक को जीवाई कि भगवान धाम को जीवाई हेले प्रयास दरकार नहीं आराम से आम आमर मुखरे आमर जीवारे भगवान नाम नवा भगवान चिंतन करवा मन भगवान चिंतन करवा ये भगवान कर्ण द्वारा भगवान महिमा श्रवण करवा अनायास कौन परिश्रम ना अनायास भगवत धाम जापर किंतु नरक को जाए बहुत कष्ट करा पड़े तथापि तथापि लोक मैंने लोक मैंने कहीं भगवान प्रति श्रद्धापण होना तेणु तेणु हे असुर बालक मैंने तुम्हें जो इंद्र सुख जो सब कौन वस्तु तुम्हें एकजुट करुछ
से सब वस्तु कौन होची ना अनित्य कारण से सब वस्तु तुम पाखे सबुदिन रहिबो ना मनुष्यर धन तापर श्लोक मनुष्यर धन सुंदर स्त्री एवं बांधवी पुत्र कन्या गृह भूमि गाभी हस्ती अश्व आदि आमर जिते गृहपालित पशु बा आमर धन संपद आमर अर्थ एभली काम एभली समस्त जलस्व भोग करिवार समस्त आयुष मध्य क्षणभंगुर एवं सबकिछि अस्थिर आमर धन स्त्री आमर बंधु बांधव पुत्र कन्या गृह सबकिछि क्षणभंगुर अस्थिर एपरिक मनुष्य जीवन मध्य अनित्य जो व्यक्ति जो व्यक्ति एटा बुझी पारि जे सबकिछि होउछि आम आम पाखे जहाँ सबकिछि अस्थिर बा कौन अनित्य से हूँ प्रकृति विचक्षण व्यक्ति से विचक्षण व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति पाखे ये जड़ ऐश्वर्य सुख सुख ये जड़ ऐश्वर्य कौन प्रकार सुख प्रदान करें कारण जी बुद्धिमान जी बुझी पारि जे प्रकृत ये जो कौन ना जड़ ऐश्वर्य पुत्र स्त्री कन्या धन संपद जहाँ जड़ ऐश्वर्य रही से सब हूँ कौन अस्थायी क्षणभंगुर जेटा बुझी पारे कथा भी से भगवान जहिष्टिका भोगा दुख जो नते आद्यंति बत कत्व न तेषु रमति बुध कारण इंद्रिय सुखटर आदि अच्छी अंत अच्छी बुद्धिमान व्यक्ति न तेषु रमति बुध जो मैंने बुद्धिमान व्यक्ति से रमण करती ना कारण से जानते ये सुख भोगे कौन ना आरंभ अच्छी शेष अच्छी ये चिरंतन सुख ये प्रदान कर ये जो ये गोटे उदाहरण दि जाए प्रकृत जदि गोटे छोट पिला को तो आप गोटे गिफ्ट दब कौन ना गोटे सुंदर अपार्टमेंट माने स्ट्रक्चर तैयारी करी कंढे भली तैयारी करी कौन ताकू दब से पिला देखि बहुत खुशी हो जहाँ से खेलनाटा से खेल से पिलाटा को छोट बड़े खेलना से बहुत आनंद हम कि छोट पिला को प्रकृत में गोटे फ्लाट दे बापा सी खुशी हम कि खुशी हम ना तो खेलनाटा जिते खुशी हम बड़ फ्लाट देते खुशी हम ना 40 वर्ष है से बापा से पुओ को खेलनाटा दब बापा रे तु खेलनाटा केते खुशी होलु तु खेलनाटा नहीं यहाँ हूँ फ्लाट ये खेलना तो घर तु खेले पुओ मत कौन तो छोट बोली भाविल ये कौन हम आपको नहीं कौन करी कारण जो पिलाटा छोट बड़े कौन से घर को से सुख मन ना से खेलना सुख मन करुला खेलना को सर्वस्व बोली मन करुला से आज कौन करा ये खेलना मोर दरकार ना कारण से बुझी पारी यहाँ हूँ खेलना ताको संतुष्ट कमी हम प्रकृत गोटे फ्लाट दि जाए गोटे घर दि जाए से हाँ जाओ मत खुशी कर ठीक से जो मैंने प्रकृत बुझी पारि जो मैंने बुद्धिमान से बुझी पारि जो मैंने ज्ञानवती होती से बुझी पारि प्रकृति ये समस्त वस्तु अनित्य ताहले से कदापि ये अनित्य वस्तु से प्राप्त कर कदापि प्रयास करना से सुख ऐश्वर्य प्रति कदापि धावमान हम ना जो वयस्क व्यक्ति को खेलना देले से खुशी हुए ना कारण से जाने ये खेलना आधे मोर ये खेलना मोर कौन मत कौन आनंद प्रदान कर ठीक से ही जो मैंने बुद्धिमान व्यक्ति कदापि ये माने कौन तथाकथित जड़ ऐश्वर्य नहीं से कदापि निज गर्व अनुभव करते ना कदापि से सुखर अनुसरण करती ना कारण से जानते यहाँ हूँ कौन ना क्षणभंगुर एवं चिरस्थायी तेणु हे माने देख प्रहलाद महाराज कहे देख प्रहलाद असुर पालन कर देख प्रहलाद आम अच्छा ठीक अच्छे तुम्हें मतलब कहल आम पाप करूँ ना ये पाप कर्म करूँ ना कि नरक जीवन ये दुख कष्ट भोग करूँ ना आम पुण्य कर्म करवा पुण्य कर्म कर स्वर्गलोक को जावा स्वर्गलोक बहुत सुख मिले स्वर्गलोक जदि आम कौन ना पुण्य कर्म करवा स्वर्ग सुख पाइबा जो देवता मैंने स्वर्ग सुख कर स्वर्ग सुख लाभ कर स्वर्ग तुम भावनी स्वर्ग स्वर्ग प्रकृति स्वर्ग सुख भी नित्य नुहे एवं ही लोके कृत भी कृतम अपनी 40 वर्ष कहते
क्षयिष्णव स अतिशय न निर्मला क्षयिष्णव माने सेई सुखटा होची माने जो त्रिलोक जो स्वर्ग जो सुख रही क्षय से रही क्षय माने क्षयशील माने तर हूँ कौन विनाश रही पुण्य क्षय हेले से सुख सरीज भगवान गीतार से कथा कहना ते तम भुक्त स्वर्गलोक विशाल क्षण पूर्णे मर्त्य लोक विशंति भगवद गीतार नवम अध्याय श्लोक 21 नंबर श्लोक भगवान कहते क्षण पुण्य मर्त्य लोक विशंति एवं तई धर्म मन पकड़ना गतागतम काम काम लभंते जे जो माने पुण्य करी स्वर्गलोक को जाती से माने पुण्य क्षण होला परे मर्त्य लोक आसंती सीता कहते क्षयिष्णव स अतिशय न निर्मला से निर्मल नुहे कारण सबुदिन आम सुख भोग कर हाँ तुम पुण्य कर्म कर किंतु पुण्य कर्म फल जो सुख मिल से सुख कौन ना निर्मल नुहे से सुख सबुदिन नुहे तेणु किंतु स्वर्गलोकर जीवन जदिओ पृथ्वीर जीवन ठारू शत सहस्र गुण अधिक सुखकर तेणु स्वर्गलोक शुद्ध अथवा जड़ अस्तित्व प्रति त्रुटि मुक्त नुहे स्वर्गलोक हूँ अनित्य क्षण पुण्य मर्त्य लोक विशंति तेणु तुम्हें तांकर आराधना करना तस्मात् दृष्ट श्रुत दूषण पर कि से परम पुरुष भगवान ठारे कौन दोष ना सी हूँ संपूर्ण निर्मल तुम तांकर आराधना कर तुम्हें स्वर्ग को जाने कहीं चाहते पुण्य कर्म कले कौन तुम पाइब कारण स्वर्गलोक नित्य नुहे अनित्य कारण आम ये स्वर्गलोक समय मृदल ब्राह्मण नामक जन ब्राह्मण अत्यंत दानवान पुरुष से बहुत दान करती एवं दिने तांकर कौन ना जे दान करी एभली दान से करछंती स्वर्ग देवता माने से बहुत पुण्य अर्जन करछंती एवं देवलोक देवदूत मैंने तुम आसती नापी जे तुम बहु पुण्य हो तुम्हें ये स्व शरीर तुम कौन कर स्वर्गलोक कारण लोक मैंने शरीर त्याग कला स्वर्गलोक जाए किंतु सी एभली पुण्य कर माने धार्मिक से देवदूत मैंने विमान आनी आसछंती जे तुम ये स्व शरीर कौन विमान आरोहण कर तुम्हें स्वर्गलोक को जीव देवलोक से बुद्धिमान से माने देवदूत मैंने पचार आज्ञा स्वर्गलोक कौन फैसिलिटी रही स्वर्गलोक कौन गुण रही मत कहतु सी कहीगले सब स्वर्गलोक कई बुढ़ा हंती ना स्वर्गलोक समस्त शरीर अत्यंत सुगंध युक्त कारण शरीर दुर्गंध बाहर ना कि वस्त्र मैला हुए ना जो फूलमाला से कभी मलिन हुए ना विभिन्न प्रकार सुख रही विभिन्न प्रकार सुख रही स्वर्गलोक बहुत सुख रही स्वर्गलोक सीटा हूँ भोगजनी आम ये जो कर्म करवा से कर्म फल भोगटा आम से भोग करवा अच्छा से मत कहले देवदूत मैंने कहते प्रकृति स्वर्ग दोष कौन से कहते आम जो कर्मर फल आम जो कर्म ये भारत भूमि आम जो कर्म करवा से कर्मर फल ही आम स्वर्ग भोग करवा सेठी किंतु आउ नुआ कर्म करिपारिबा नहीं तुम से कहते अच्छा दोष कौन से कहते देख जे देवता मान देवदूत मान कहले जे देवदूत मैंने कहते देख मृदल स्वर्ग सबुठ बड़ दोष आमको यह जना पड़ू जे कर्मर फल जो शेष हो जाए से पतन हवा पड़े तुम चिंता कर देख से कहूँ देख ये कथा चिंता कर जो जार मन सब सुख भोग लगी जा पतन हवा हम कि दुख सी पाइब
ତାକୁ କିଭଳି କଷ୍ଟ ହବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ ସେ ସମୟ ତାଙ୍କର ପତନ ହବାର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କି କଷ୍ଟ ହବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ସେଇ କଷ୍ଟ ହିଁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ ବହୁତ ସେଟା କହିହବ ନା ଏଭଳି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଉନ୍ନତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ ସୁଖ ଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆମ ଭିତରେ କଣ ନା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ତୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ମତେ କୁହ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ହବ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଧାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯୋଉଠାକୁ ଗଲେ ଯଦବର୍ତ୍ତମାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମହାଭାରତ ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମ ଗଲେ ସେଠିକି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ନା ଦେବତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିମାନ ସେ ଫେରିଗଲେ ତେଣୁ ଠିକ ସେଇପରି ମାନେ ଅସୁର ବାଳକ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଖେସ ନବ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଏ ସରି ଏ ଅସୁର ବାଳକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ତୁମେ କହୁଛ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ସୁଖ ବି ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ ସେମିତି ସେଠୁ ପୁଣି ପତନ ହବ ତେଣୁ କାରଣ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନୁହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କର କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି କେହି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନି କିମ୍ବା ଶୁଣିନି ତେଣୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଲାଭରେ ଲାଗି ଏବଂ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଲାଗି তুমি ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କର କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏକଥା କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାକ୍ଷାତ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ମିଳିମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀକୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଲୋକୟାନ୍ତି ନିରବଦସ୍ୟ ଆତ୍ମନଃ ପଦଂ ଧ୍ରୁବଂ ଚ ଅଭିଚାରି ସଦ୍ଗୁଣଂ ସେ ସବୁଆଡେ ସମସ୍ତ ଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ସବୁଆଡେ ଭୁଲିକି ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ କଣ ଅଛି ସମସ୍ତ ଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହା କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଅସୁର ଚାରଣ ଅସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ଅସୁର ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାଠାରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହିଛି ଯେ କାହାଠାରେ କିଏ ସବୁଠାରେ ଦୋଷ ରହିତ କାହାଠାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଦେବତା ମାନେ ବଡ ବଡ ଋଷିମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ଅସୁର ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ କଣ ଦୋଷ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁନମୁତପୋଜସ୍ୟ ନମନ୍ମୁନିର୍ଜୟ ଭାଗବତରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁନମୁତପୋଜସ୍ୟ ନମନ୍ମୁନିର୍ଜୟ ଯେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତପସ୍ୱୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ନିର୍ଜୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୁର୍ବାସା ବହୁତ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ତପସ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଭାରେ ବି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଂ କ୍ୱଚିତ୍ ତଚ୍ଚ ନସଙ୍ଗ ବର୍ଜିତମ ବହୁତ ବୃହସ୍ପତି ଆଦି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ନସଙ୍ଗ ବର୍ଜିତମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କଟିନି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତି ତାରାକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ କଣ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଗରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଜ୍ଞାନ କ୍ୱଚିତ୍ ତଚ୍ଚ ନ ସଙ୍ଗ ବର୍ଜିତମ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ୍ ମହାନ ସ୍ତତ୍ର ନ କର୍ମ ନିର୍ଜୟ ଏଥିବାରେ ଆହୁରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି ସ ଈଶ୍ୱର କିଂ ପନ୍ତୁ କୃପାଶ୍ରୟ
कहार आम शरण इंद्र कथा कौन कहवा इंद्र तो प्रतिक्षण खंडे तार पदवी चली जाऊँगी सी के जल भितर नुचंती पद्मनाड़ भितर नुचंती राज्य सब ठीक नुहे तेणु किए अच्छी कहार शरण आम नहीं पार क्या समस्त भितर कहार आधे दोष समस्त व्यक्ति दोष देखा कई हाथ में निर्दोष व्यक्ति मुझे देखिपारूनी कहते हाँ आहरी व्यक्ति अच्छा धार्मिक व्यक्ति धर्म क्वचित तत्र न भूत सहुदा शुक्राचार्य आदि बहुत धार्मिक व्यक्ति अच्छा किंतु से माने समस्त जीव प्रति सहुत नुहति कारण से असुर मान गुरु तेणु समस्त जीव दया ना तेणु ये बहुत त्यागी व्यक्ति अच्छा त्यागम क्वचित तत्र न मुक्ति कारण किए ना शिवजी শ্বশুর नाम कौन दक्षादि कौन ना प्रजापति मान अच्छे दक्ष कौन बहुत बड़ बड़ यज्ञ कर बहुत अन्नदान करती बहुत दान करती किंतु से दानटा मुक्तिर कारण नुहे से त्यागटा मुक्तिर कारण नुहे तेणु से त्यागर मूल्य कौन अच्छी बीजं न पुंस अजगैव निष्कृत बहुत बलवान व्यक्ति अच्छा शुंभ निशुम आदि बहुत बलवान व्यक्तित्व अच्छा किंतु से आयुष कम तेणु देखिपारूनी किए व्यक्ति अच्छा शरणापन्न हुई अच्छा बहुत शिवजी तो अच्छा ना शिवजी कथा कहते शिवजी सब गुण रही आयुष रही क्वचित आयु आयु न शिवमंगलम क्वचित तद अपि अस्ति न वेद्यम आयुष कारण शिवजी अमर शिव संपन्न किंतु सोपी अमंगल कारण चेष्टाटा सी कौन ना श्मशान में बास करती तेणु से मोर प्रति मन जाऊनी किंतु जड़े व्यक्ति अच्छा सुमंगलम कष्ट न कांक्षते ही माम जड़े जन को देखुची समस्त सबको समस्त मंगल रही समस्त गुण नित्य रही किंतु गोटाए जिन देखुची कौन न कांक्षती माम किंतु सी मत चाहूना तेणु लक्ष्मीदेवी यहाँ उक्ति जे भगवान ठारे सुमंगलम समस्त मंगल भगवान समस्त मंगल 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 विष्णु मंगल मधुसूदन रही तेणु ये कथा से कथा प्रहलाद महाराज कहते भगवान ठारे भगवान सर्वमंगलमय से भगवान ठारे कौन दोष ना ये कौन व्यक्ति ना भगवान ठारे दुख दोष दर्शन कर तुम से भगवान आराधना कर भजन कर भजन कर कष्ट कौटी अच्छे नरक जावा बरम कष्ट करा पड़ो कि भगवत धाम जावाक कष्ट करा पड़ो ना रसिक बालक मैंने तुम्हें हरि कौन हरि को समस्त दोष न जानी आराधना कर एवं समस्त सकाम कर्म मन निवृत्त करी तुम भगवत भजन रे नियुक्त हुआ भगवान हरि भजन कर एवं समस्त तुम भावुच तुम सुख पाई जो इंद्र सुख जो चेष्टा कर चेष्टा ही तुम दुखर कारण हम तुम भावुच आम चेष्टा कर सुख पाइबू कदापि नुह आम जिते सुख पाई चेष्टा आरंभ करवा से आम दुखर आरंभ है जान से कहते श्लोक कहते देख तुम्हें कदापि आगुरी प्रहलाद महाराज कहते जे सुखम इंद्र दत्या देह जोगिन ये सुखटा इंद्र सुख पाई चेष्टा कर तुम्हें न तत् प्रयास से प्रयास करा उचित नुहे आम जिते बड़े इंद्र सुख पाई चेष्टा करवा से दुखर आमर ही आसो से सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्म 42 नंबर श्लोक जे प्रहलाद महाराज कहते सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्म सदाप्नोति यह दुखम मनीहाया सुखावृत यही जड़ जगत रे समस्त विषयासक्त व्यक्ति सुख लाभ एवं दुख दूरीकरण चेष्टा करती एवं से उद्देश्य रे कर्म करती किंतु प्रकृत पक्ष रे मनुष्य जेतेबेले माने सुखी हुए एवं जेतेबेले से सुखर लगी कौन प्रकार चेष्टा आरंभ करे मनुष्य जेतेबेले सुख लगी चेष्टा करे आरंभ करे सेतबेले ही तार दुख भोग आरंभ हुए जेतेबेले व्यक्ति कौन ना सुख भोग करने चेष्टा आरंभ करे सेतेबेले तार दुख भोगटा आरंभ हुए कारण भौतिक प्रकृतिर नियमटा यही
ଯେମିତି କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ଏଇଟା ଯେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା କିଛି କିଛି ଆସୁନି ମୋର ଶୁଭା ଯାଉଛି ଏଠି କିଛି ଆସୁନି ତ ଦେଖାଯାଉନି ଜୁମଟା ଆସୁନି ठीक है हाँ देखिए ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଗାଁରେ ଯୋଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ପକାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ବନିଶୀ କହନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ ସେଟା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସେଟା ବି କେତେଥର ପକେଇଛି ଛୋଟବେଳେ ମୟୂର ପୁଛରେ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ନଥାଏ ଯୋଉ ନାଳଟା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ ତା ଦେହରେ ଥୋପଟା ଗୁନ୍ଥା ହବ ଏବଂ ପାଣିରେ ପକା ହବ ମାଛଟା କଣ କରେ ମାଛ ତା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯାହା ତାର ଅଛି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଖାଇକି ଆରାମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦିଆଯାଏ ଅପସନ ଦିଆଯାଏ ଏଟା ଖା ଗୋଟେ ଜିଆ ଟିକେ ଗୁନ୍ଥିକି ତାକୁ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନୂଆ ଆସିଲା ସେ ଭଡ଼ କରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବ କାରଣ ମାୟା ଏଇଭଳି କାରଣ ତା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛି ତାର ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଚାହୁଁଛି ସେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଚାଲାକି ମାଛ ଅଛି ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଖୁମ୍ପିବ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଭରିକି ଆସିବ ଭରିକି ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛ ଧରାଳି କଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଝୁଙ୍କିବ ସେ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତେରେଣ୍ଡା ନା କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଏଇଟା ଉପରେ ସିମ୍ବଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ସେ ବନିଶୀ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଟାଣିବ ଯେତେ କାରଣ ସେ ଉପରେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଥିବ ସେଟା ବୁଡ଼ିଲା ଜାଣିବ ଯେ ଏଟା ବୁଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଜାଣିଲା ଯେ ମାଛ ଟାଣିଲା ସେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଥିବା ଲୋକ କଣ କରେ ସେ ବନିଶୀଟାକୁ ଟାଣିକି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛର କଣ କରିବ ଆସାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ବାସ୍ ତା ସୁଖଟା ସରିଗଲା କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେତେବେଳେ ମାୟା ଆମକୁ କଣ କରେ ସେଇଠି ବନିଶୀ କଣ ମାୟାର କିଏ ବନିଶୀ ମାଲିକ ଧରିଛି ବନିଶୀ ଧରିଛି ନା ତା ହାତରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଧରାସ କିନା ଆମକୁ ଘୋଷାରିକି ଆଣି ପକେଇବ କିନ୍ତୁ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ମାଛଟା କଣ କରେ ଯୋଉ ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ୟାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବି ଏବଂ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ସେ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଗିଳି ଦଉଛି ସେ କଣ୍ଟା ଢୋକିଲେ ଭିତରକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟଦାୟକ ତେଣୁ ଲାଗେ ସୁଖ କର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ନ ତେସୁର ଅମେତେ ବୁଧ ଭଗବାନ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ନ ତେସୁର ଅମେତେ ବୁଧ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଦାପି ଏଥିରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖିବେ ବନିଶୀରେ କେବେ ଦଣ୍ଡିକିରି ପଡ଼ିବ ନା ଜମା ପଡ଼ିବ ନା ସେଟା ବହୁତ ଚାଲାକ ସେ ନା ଶିଖା ଟିକେ 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 ଠୁଙ୍କିକିରି ଖାଇଦେଇକିରି ପଳେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇଏ ମାଛ ସେମାନେ ଭରିକିନି ଆସିବେ ଖାଇବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗିଳି ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାୟାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଳରୁ ବାହାରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ତାର ସୁଖ ସରିଗଲା ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁଖ ଆମେ ରହିଛେ ଯୋଉ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁଖ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଖ ମିଳିବ ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ତେଣୁ ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ ତେଣୁ ତୁମେ ହେ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇ ଅସୁର ବାଳାକୁ ତୁମେ ଏଇ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ପାର କି ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଏ ଶରୀର ଆମର ନୁହେଁ ଏ ଶରୀରରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ କାରଣ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛି କାମାନ କାମେ ଅତେ କାମେ ଯଥା ଅର୍ଥ ମିହ ପୁରୁଷ ନ ବೈ ଦେହସ୍ତୁ ପାରକି ଭୃଙ୍ଗର ଯାହା ତୁ ଅପିତି ଚ କାରଣ ଏ ଶରୀରରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏ ଶରୀର ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ଏ ଶରୀର ବିଷ୍ଠାରେ ପରିଣତ ହବ ଏ ଶରୀର ତଳେ ଆମେ ଜାଳିବା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହବ ଏ ଶରୀର କୌଣସି ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହବ ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁଛ
ये शरीर को सुख देवा ये शरीर एत वस्तु कहीं जोगाड़ कर ये जो वस्तु आम जोगाड़ कर सांगे जीवना कि शरीर भी आमर नुहे ना ये शरीर पर कार अधिकार शरीर छाड़ा अग्नि द्वारा जली माने जली भस्मीभूत हम पाउंसर परिणत हम एवं फोपाड़ी दि जाए सुगा कुकुर मान अधिकार रही पोती दि जाए ताली शरीर कुर्मी कीट मैंने खाईजे एवं जब पानी रे छाड़ी दि जाए जलचर जीव मान खाईजे तुम ये शरीर आमर कौन अधिकार अच्छी तुम ये शरीर पे आम एत भोग तो कहीं परिश्रम कर जीवन सारा आम कौन करुचे ना इकट्ठा करुचे ये असुर बालक माने तुम जानो ये शरीर हूँ क्षणभंगुर एवं जो कौन आमको जहाँ मिली से संतुष्ट रहा एवं आमर समय केवल नष्ट न करी भगवान भजन भगवान सेवा करने आमको प्रयास करा तेणु तेणु तुम्हें जेहेतु ये शरीर कौन ना विष्ठार परिणत हम जिते बड़े ये देहर अस्तित्व रही से पर्यंत समस्त वस्तु अत्यंत प्रिय बोली मन हो जिते शरीर विनष्ट हो जाए एवं आम समस्त संपर्क वस्तु जिते प्रिय थे सी आमको प्रिय लगे ना कौन अस्तित्व रहा प्रकृत पक्षे ये कौन प्रयोजन ना किंतु अविद्यार फल ये अविद्यार फल आम अनर्थ को ये अनर्थ हेले अर्थ बोली आम प्रतिमान अविद्या तेणु नित्य आनंद सुखर समुद्र तुलन से अत्यंत तुच्छ आत्मा हूँ नित्य यही प्रकार तुच्छ संपर्क कि प्रयोजन तेणु तुम्हें आत्मार अनुष्ठान कर भगवान से युक्त हुआ भगवान से नियोजित हुआ भगवान हूँ नित्य तुम्हें ये जो अनित्य वस्तु युक्त हो अज्ञानता जो अनित्य को नित्य बोली मन करुछ प्रहलाद महाराज असुर बालक मान बहुत सुंदर भाव शिक्षा प्रदान कर बालक मैंने तुम जो पूर्वकृत कर्म अनुसार हम विभिन्न प्रकार शरीर प्राप्त होती तार फल आम गर्भ प्रवेश कर माने गर्भ प्रवेश आरंभ करी जे शरीर समस्त आवश्यकता को नाना दुख कष्ट भोग करुचे पूर्व जन्मर कर्म अनुजाई आम जन्मग्रहण करुचे एवं विभिन्न दुख कष्ट भोग करुचे तेणु पूर्ण रूपे विवेचना कर तुम्हें कह जे सकाम कर्म चरम कौन दुख दृश्य प्रदान करे तो सकाम कर्म द्वारा आम केबे भी चिर शांति लाभ करूँ से प्रकार माने पुण्य कर्म करी से प्रकार अनुष्ठान करी लाभ कौन अच्छी किसी लाभ ना तुम हरि भजन कर हरि भजन ही जीवन उद्देश्य पशु बालक मैंने कहले ये प्रभात कहीं जीव यपरी विभिन्न शरीर लाभ करे प्रधान को देख यहाँ हूँ अविवेक आम अज्ञानता जो जीव बारंबार बारंबार जन्म सफल घृण्यमान हुए कर्माणी आरभते देही नाम आत्मन अनुवर्तिना कर्म भी तद अनुते देहम उभयम त्वयि अविवेकतः यहाँ हूँ अविवेक वशतः देहधारी जीवर पूर्वकृत कर्म फल तार जीवन समाप्त हो पारे किंतु तार अर्थ यही नुहे जे जल देहर बंधन से मुक्त हो गला जीव तार पूर्वकृत कर्म अनुसार एक शरीर प्राप्त हुए एवं से शरीर द्वारा अनुष्ठित कर्मर प्रभाव से आ गोटे शरीर तार तैयारी हुए यहीपरि भाव से तार अज्ञान फल जन्म मृत्युर चक्र से कौन ना बारंबार बारंबार से देह धारण कर भगवान से कथा गीतार कहते इच्छा द्वेष समुतेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन स्वर्गे जानती परम तत्व जे जीवर इच्छा द्वेष यही भाव नहीं द्वंद्वता तुम भाव नहीं अविद्या जो बारंबार मोहित हुए बारंबार ये जगत को जन्म चक्र बारंबार घूमने मन हुए तेणु तुम्हें इतने जब मोहित न हुए तुम भगवत चरण आश्रय कर तुम भगवान भजन कर तुम भगवान भक्ति करना ही जीवन उद्देश्य यही भगवान भजन कारण भगवान सबकिछ प्रदान कर समर्थ धर्म अर्थ काम मुख्य सबकिछ भगवान आश्रित कर रही श्लोक
तस्मात् तस्मादस्य कामस्य धर्मस्य जत उपाश्रय भजता इह आत्मानं मनिहं हरिमीश्वर। परमार्थिक उन्नतिर चारिटी वर्ग रही धर्म अर्थ एवं काम मुख्य परमेश्वर भगवान को आश्रित रही। हे बंधु माने भगवत भक्तर पदांग अनुसरण कर कौन प्रकार कामना न करी भगवान उपरे सर्वत भाव निर्भरशील हुआ भक्ति सरकार से ही परमात्मा आराधना कर। कारण तेणु हे असुर बालक मैंने समस्ते भगवान मुकुंदर भजन करने दरकार। कारण से कहते ये देवता असुर मनुष्य यक्ष समस्त यहाँ हूँ प्रयोज्य समस्ते भगवान आराधना करने दरकार। कहीं देव असुर मनुष्य बा यक्ष राक्ष यक्ष गंधर्व बा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व तथा यही जगत जे केहू जदि मुक्तिदाता मुकुंदकर श्री पादपद्म सेवा करती ठीक मोपरी आम प्रति प्रहलाद को आम प्रति परम मंगलमय स्थिति को लाभ करें। तेणु असुर बालक मैंने समस्त हरिभजन करवा उचित। हरिभजन खाली आमर नुहे समस्त देवता असुर मनुष्य यक्ष राक्षस गंधर्व समस्त मानकर कर्तव्य हूँ भगवत भजन करवा दरकार भगवान भक्ति करवा दरकार। ये भगवत भक्ति कले जो प्रकार स्थिति आम लाभ करे समस्त से प्रकार स्थिति लाभ करें। तुम असुर बालक कह देख आमर कौन योग्यता अच्छी जे आम भगवान को संतुष्ट कर भगवान को भक्ति ना कौन योग्यता आवश्यकता नहीं ना अलंग द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं बा वासुदेव आत्मज सेटा कि दरकार नहीं। ब्राह्मणत्व लाभ करे ब्राह्मण भाव हेले भगवान पूजा करबा ना दरकार नहीं बा देवत्व बा ऋषित्व बा सदाचारी संपन्न बा पांडित्य थिबा दरकार ना किछि दरकार नहीं। प्रियनाय मुकुंदस्य नवृत न बहु ज्ञानता भगवान प्रसाद। ये असुर बालक मन तुम जान जे ब्राह्मणत्व देवत्व ऋषित्व सदाचार एवं पांडित्य द्वारा भगवान माने प्रसन्नता विधान करा जाए ना। कारण आम ये भाव ना आम तो योग्यता नहीं कौन योग्यता अच्छी भगवान आम कौन अच्छे आम पाखे भगवान दबू आम कौन योग्यता अच्छी आम भगवान को ना भगवान को प्रहलाद मैंने कह भगवान ये सब जिन देखते ना बड़ पांडित्य क्या बहुत बड़ ये देवता ब्राह्मण ना आम समस्ते भगवान भजन कर भगवान ये सब गुण द्वारा प्रसन्नता हूँ ना। ये समस्त गुण गुड़िक भगवान को आनंद प्रदान करे ना। एपरिक न दानम न तप न इज्जया न शौच न व्रतानिश एपरिक दान तपस्या यज्ञ शौच व्रत इत्यादि द्वारा भगवान प्रसन्न विधान करा जाई पारे ना। भगवान किमिति प्रसन्न हुंती ना प्रिय तो अमलाया भक्त्या हरिनाम आदि विडंबनम से केवल अमलाया भक्त्या द्वारा माने भगवान केवल अविचल एकांतिक भक्ति द्वारा ही प्रसन्न हुंती। भक्तिया हम एकाग्र भगवान बारंबार समस्त शास्त्र कहते जे भगवान भक्ति बस माधव भक्ति द्वारा भगवान वसित होती भक्ति द्वारा भगवान प्रीत होती। से तो कहते केवल भगवान अविचलित एकांतिक भक्तिर द्वारा ही प्रसन्न होती। एकनिष्ठ भक्ति व्यतीत अन्य सब समस्त किछि केवल लोक देखाणिया मात्र। जार हृदय भगवान प्रति भक्ति नहीं पाखे ब्राह्मणत्व देवत्व ऋषित्व सदाचार पांडित्य दान तपस्या यज्ञ शौच सब रही तार भगवान प्रति भक्ति नहीं श्रद्धा नहीं ताले सेटा केवल लोक मान को देखा अभिनय मात्र। केबे भी भगवान संतुष्ट होबे ना। तेणु भक्ति माध्यम समस्त पापी माने अमृत लाभ करते यही भक्ति लाभ कले यही भगवान के भक्ति कले समस्त जिते पापी माने अमृत लाभ करती। प्रहलाद महाराज पूर्व कहते मोर माँ स्त्री एवं मोर माँ बहुत दिन होता स्त्री जाति जो से प्रहलाद महाराज कौन ना नारद मुनि समस्त शिक्षा को सी भूली जाते कि नारद मुनि कृपारे मुझे भूलिनी मुझे मन रखी। प्रहलाद कहते स्त्री माने शूद्र माने जदि भी ये भगवान भक्ति करती
निश्चित से अमृतत्व लाभ कर निश्चित से मंगल हम दत्तया जक्ष राक्षस स्त्रिय शूद्रा ब्रजौकश खगा मुर्गा पापजीवा सन्ति ही अच्युतांगता। हे दत्त नंदन बंधुगण यक्ष राक्षस निर्बोध स्त्री शूद्र पक्षी पशु समस्ते जेते पाप जेते पापी रही समस्ते जो माने भी भगवान भक्ति जो अवलंबन करेंगे भगवान भक्ति करेंगे भगवान भक्ति श्रवण कीर्तन आदि भगवान को श्रवण करिया भगवान कीर्तन करिया भगवान को सेवा कर जो माने एथिरे नियोजित हेबे से आध्यात्मिक जीवन लाभ करेंगे से अमृतत्व लाभ करेंगे अमृतत्व प्राप्त होगा अच्युतांगता भगवान अमृतत्व से लाभ करेंगे तेणु असुर बलाक मैंने तुम समय नष्ट न करी भगवत भजन रत हुआ। तो मनुष्य जीवन केवल लास्ट प्रहलाद महाराज कनक्लूजन देले प्रकृत में मनुष्य जीवन कौन एतावानेन लोकस्मि पुंस स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्ति गोविंदे जत सर्वत्र तदीक्षणम। यही जगत रे सर्व कारण परम कारण एक एतावान लोकस्मि। तेणु ये समस्त लोक मान कर्तव्य होउची कौन ना एकांत भक्ति गोविंदे गोविंद को ठारे एकांतिक भाग में भक्ति करिबा। यही जगत रे सर्व कारण परम कारण गोविंद कर श्री पादपद्म सेवा करिबा एवं सर्वत्र तांकु दर्शन करिबा एवं जीवन एकमात्र होछि लक्ष्य। एटा हो जीवन लक्ष्य सर्वत्र हरि दर्शन करिबा एवं तांकर चरण आम प्रकरण हेले ही आमर से अवस्था आम प्राप्त हो पारे। ये हूँ मनुष्य जीवन एथि मनुष्य जीवन प्रयास करवा उचित समस्त शास्त्र शास्त्र यहाँ हूँ विश्लेषण कराई। प्रभुपाद सुंदर भाव में प्रकट देते कि सर्वत्र हरि दर्शन क्यों मानकर हम ना नारायण मयं धीरा पश्यन्ति परमार्थिन। जो माने नारायणमय से समस्त जगत भगवान स्वरूप देखती से सबू सबू जगह समस्त से कौन परमार्थ दर्शन करती जगत धर्म लुब्धा जो मैंने कौन जमी कहुए कौन बेपारी लोकटा जो गले से देखा कौटी बेपार अरे से मंदिर को आसिले देखो अरे मैंने केते बेपार कर लाभ कर कौन साधु होती सब बेपार सब से बेपार देखो सब बिजनेस देखो भगवान सेवा पूजा साधु संग तार नजर को आसब ना कारण जगत धनमय लुब्धा कारण जगत को से धनमय लिख कामुका कामिनीमय जो माने कामुक व्यक्ति से सबु किसी संपद से कौन भाव निजर उपभोग्य बोली से भाव से जगतर समस्त नारी को जहाँ को दर्शन कले भी समस्त को से काम दृष्टि देख कारण से कामुक व्यक्ति ठीक से हीपरी जो मैंने धीर व्यक्ति जो मैंने भगवान चरण में समर्पित नारायणमय से माने समस्त सबु जगह को जहाँ जो गले भी सब किसी भगवान सेवार भगवान सहित संबंध से देखती नारायणमय धीरा पश्यन्ति परमार्थिन जगत धनमय लुब्धा कामुका कामिनीमय। भगवत भक्त सबकि नारायण संपर्क दर्शन करती समस्त किसी नारायण शक्तिर विस्तार धन लोलुप व्यक्ति जेपरी सारा जगत को धनमय दर्शन करे एवं कामुक व्यक्ति जेपरी समस्त जगत को कामिनीमय दर्शन करे सही परी शुद्ध भक्त सबकि को नारायणमय दर्शन करे। प्रहलाद महाराज परी शुद्ध भक्त पत्थर स्तंभर मध्य नारायण को दर्शन करते किंतु तार अर्थ यह नुहे जे गुड़िक मूर्ख अच्छा जे लोक दारिद्र नारायण नामक एक अपसिद्धांत प्रचार करती आम मानकर माने सेटा को माने प्रचार करता आम द्वारा मान स्वीकार कर अघेब जी प्रकृत पक्ष सर्वत्र नारायण को दर्शन करती सी धनी दरिद्र भेद दर्शन करती ना से दरिद्र नारायण ग्रहण से दरिद्र नारायण को ग्रहण करी धनी नारायण को वर्जन करती ना सेटा ही भगवत दर्शन प्रकृत से भगवत दर्शन सब कौन कहुए दरिद्र नारायण समस्त दरिद्र मान ही नारायण धनी माने दरिद्र मान नारायण अच्छा धनी मान नारायण नहांती तो ताने से बाछ विचार कर
सर्वत्र समदर्शनता नहीं पक्षांतरे विषयाशक्त व्यक्तिर भ्रांत दर्शन जो विषयाशक्त से दर्शन अत्यंत भ्रांत तेणु हे प्रहलाद प्रहलाद मार्ग हे असुर बालक मैंने यहाँ हूँ मनुष्य उद्देश्य सर्वत्र हरि को दर्शन करवा मनुष्य उद्देश्य हूँ एकांत भक्ति गोविंदे जत सर्वत्र तदीक्षण सर्वत्र भगवान को दर्शन करवा एवं भगवान चरण में पुणी एकांत भाव भक्ति कर यहाँ हूँ मनुष्य उद्देश्य तेणु तुम्हें यही भाव में मनुष्य हरिभजन रत हुआ यही कथा यही अध्याय सरिले एक कथा श्रवण करी समस्त असुर बालक मैंने समस्त प्रहलाद अनुगत्य ही समस्त हरिभजन रत हो आउ सहीपर ना आग क्लास मान आलोचना कर हरे कृष्ण जगत श्री प्रभुपाद महाराज